A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy, that is the accounting ratio. You know very well in the last three videos we discussed the various types of ratio, which are the very important chapter. It is the second last chapter of this part B. And after completing this chapter, we will move to the final chapter of class 12 B, that is a cash flow statement. So today is the last class of the accounting ratio. So let's be discussed all the ratios which are discussed in the previous classes. So उन सारे ratios को हम लोग एक बार वन बाय वन रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने कितने ratios को स्टडी किया है इन पूरे इंफॉर्मेशन. So basically you know very well, if we are talking about the accounting ratios, so accounting ratio can be classified into the four categories. Accounting ratio can be classified into the four categories. The first ratio will be a liquidity ratio. Number second is a solvency ratio. Number third is a activity ratio, and number four is a profitability ratio. Okay, so there are basically four types of the ratio, accounting ratio, that is liquidity ratio, solvency ratio, activity ratio, and profitability ratio. The aim of liquidity ratio to check the शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द फर्म, यानी लिक्विडिटी रेशियो के हेल्प से एक बिजनेस फर्म क्या करता है, अपनी शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को चेक करता है कि वो अपने शॉर्ट टर्म लोन्स को पे करने में कितना कैपेबल है. वेयर इज अ सॉल्वेंसी रेशियो चेक दी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ अ फर्म, यानी कि इसमें लिक्विडिटी रेशियो में हम लोग लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को चेक करते हैं कि हम लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी रेशियो में ये चेक करते हैं कि शॉर्ट टर्म लोन्स हम पे करने के लिए कितना कैपेबल हैं, और सॉल्वेंसी रेशियो में हम ये चेक करते हैं कि हम अपने लॉन्ग टर्म लोन्स को पे करने के लिए कितना कैपेबल हैं. वहीं एक्टिविटी रेशियो हमारे एक्टिविटी से रिलेटेड होता है. यू नो वेरी वेल, दे आर बेसिकली वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटी लाइक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स करना, गुड्स को मैन्युफैक्चर करना, स्टॉक्स के रिलेटेड, ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड लाइक अ डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल, एंड ट्रेड पेबल्स यानी क्रेडिटर्स और trade payables, that is a creditors and bills payable. Trade receivable is a creditors and debtors and bills receivable. तो एक्टिविटी बहुत तरह की होती है. उन सारी एक्टिविटी का रिलेशन एस्टेब्लिश करना, उनके रेशियोज को फाइंड आउट करना, दिट इज अ प्राइमरी एम ऑफ द एक्टिविटी रेशियो. And with the help of the profitability ratio, we analyze and estimate the ability of the making of profit of the firm. यानी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के हेल्प से बेसिकली कंपनी क्या करती है, अपनी प्रॉफिट एबिलिटी को चेक करती है कि वो अपने प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितना कैपेबल है. सो यू नो वेरी वेल, एक्टिविटी रेशियो में हम लोगों ने कितने रेशियोज को डिस्कस किया था. एक्टिविटी रेशियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, द फर्स्ट वन इज अ करेंट रेशियो एंड नंबर सेकेंड इज अ लिक्विड रेशियो. Okay, so there are basically two types of ratio studied under the liquidity ratio, that is a current ratio and liquid ratio. If you are talking about the solvency ratio, जिससे हम अपने long term solvency positions को check कर सकते हैं, long term payment obligations को check कर सकते हैं कि अपने long term loan को pay करने के लिए कितना capable है. तो solvency ratio में include होता है, that is a debt equity ratio, and number second is interest coverage ratio, and number third is total assets to debt ratio. So basically there are basically three ratio which are studied in the solvency ratio. How many ratio discussed in the activity ratio? You know very well, activity ratios में कई सारे ratios हैं, जैसे कि first है inventory turnover ratio. Activity ratio is also known as the turnover ratio. So the first ratio which are discussed under the activity ratio, that is inventory turnover ratio. Number second is the trade receivable turnover ratio.
Number third is trade payable turnover ratio. Number four is a inventory trade receivable turnover, trade payable turnover ratio, working capital turnover ratio, working capital turnover ratio. And apart from this, there are basically various types of the ratio like fixed assets turnover ratio and current assets turnover ratio. अपार्ट फ्रॉम दिस रेशियोज इसके साथ भी कई सारे रेशियोज हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, दैट इज एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की हम लोग एवरेज एज भी डिसाइड करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर के में हम लोग कैलकुलेट करते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड डिस्कस करते हैं। और यहाँ हम लोग डिस्कस करते हैं एवरेज पेमेंट पीरियड हम लोग डिस्कस करते हैं। So you can see that 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 is a ratio and 3 is a helping information which are calculated with the help of ITR, TRTR and TTTR. That is the average age of inventory with the help of ITR, average collection period with the help of trade receivable turnover ratio and average payment period with the help of trade payable turnover ratio. The last ratio which are discussed in this chapter, which are included in the accounting ratio, that is a profitability ratio. So if we are talking about the profitability ratios, they are basically few types of the profitability ratio, that is a gross profit ratio, net profit ratio, number third one is a operating ratio, next one is a operating profit ratio, okay, and last one is a return on capital employed. So this is the full and final diagram which are discussed in the whole chapter. यानी इस पूरे chapter में आप you can see that we discussed a lots of ratios, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Total 20 ratios discussed and classified under the accounting ratios. As you can see that profitability ratios में gross profit, net profit, operating profit, return on capital employed, we discuss a lots of ratio. और सारे ratios को हम लोगों ने one by one very carefully discuss भी किया है. How we will calculate the current ratio, and if we are talking about the presentation of the ratio, so you know very well current ratio presented in the simple ratio, and it is a ideal ratio. करंट रेशियो का आइडल क्या है 2:1, लिक्विड रेशियो का आइडल क्या है 1:1, डेप्ट इक्विटी रेशियो भी किसमें सिंपल में प्रोपोर्शन होती है, डेप्ट इक्विटी रेशियो का भी आइडल क्या होता है 2:1, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये किसमें प्रेजेंट होता है दैट इज 6 और 7 टाइम्स, ये इसका आइडल है। एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो टाइम्स में कैलकुलेट होता है, ओके। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दी टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, तो टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो का फॉर्मूला होता है दैट इज टोटल डेप्ट अपॉन टोटल एसेट्स, और अगर यहीं लिखा होता डेप्ट टू टोटल एसेट्स तो फॉर्मूला क्या हो जाता टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेप्ट। तो ये जो रेशियोज हैं ये बेसिकली आपके सॉल्वेंसी रेशियो से रिलेटेड होते हैं। सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, सॉल्वेंसी मतलब पेइंग लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन टू द फर्म, यानी जो लोन्स कंपनी को लॉन्ग टर्म वे में प्रोवाइड करना पड़ता है, इट विल बी नोन एज द सॉल्वेंसी रेशियोज। एंड ये रेशियोज जो हैं वो आप पॉइंट में सिंपल रेशियोज में भी प्रेजेंट कर सकते हैं और परसेंटेज में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस रेशियो कैन बी परसेंटेज और इन द simple ratio, that is x is to y, it is depend on you, generally it is presented in the percentage. One more ratio which are also included in the solvency ratio जो मैं भूल गया, that is proprietary ratio. So total 21 ratio, proprietary ratio ये percentage में calculate किया जाता है।
ओके, तो लिक्विडिटी रेशियो का आइडियल क्या है, 2:1। लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो का आइडियल क्या होता है, 2:1। लिक्विड रेशियो का 1:1, डेप्ट इक्विटी रेशियो का 2:1, इंटरेस्ट कवर रेशियो 6 to 7 टाइम्स, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो किस में, परसेंटेज में या फिर सिंपल प्रोपोर्शन में, और प्रोप्राइटरी रेशियो किस में प्रेजेंट किया जाता है, परसेंटेज में। सो द नेक्स्ट रेशियो इज द एक्टिविटी रेशियो। अब आप एक्टिविटी रेशियो देख लो, इन्वेंट्री टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, ट्रेड पेबल टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, करंट एसेट टर्नओवर, ये सारे रेशियोज टाइम्स में प्रेजेंट किए जाते हैं। ऑल द रेशियोज विच आर प्रेजेंटेड इन टाइम्स, एक्टिविटी रेशियो सारे टाइम्स में होते हैं, लेकिन एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड, ये डेज या मंथ में कैलकुलेट किए जाते हैं। और जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो आपने इस पर बहुत ही केयरफुली देखा होगा। तो जब मैं ये पूरा लेआउट बना रहा हूँ, ये समरी बना रहा हूँ इस चैप्टर का, सो इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर रिवाइजिंग दिस चैप्टर एज वेल एज जब आप एग्जाम देने जाएंगे उससे पहले क्विक व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सब परसेंटेज में प्रेजेंट है, यानी इन सब के फॉर्मूलाज में मल्टीप्लाई होता है 100 से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको ये बताई थी इस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में, वो ये था कि ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, दैट इज ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, हमेशा इन दोनों का टोटल क्या होगा, 100 होगा। यानी अगर एग्जाम में आपसे कभी पूछ देता है कि सपोज ऑपरेटिंग रेशियो 80%, तो व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, दैट इज 20%। और इससे मैंने आपको एकदम प्रॉपरली प्रूफ करके भी बताया था कि कैसे, हाउ वी विल कैलकुलेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो, और हाउ वी विल calculate the operating ratio with the help of the operating profit ratio. Okay, so this is a summary chart as you can see that, so please take a screenshot, please make a proper classification of this ratio in your copy and please learn it. एक बार मैं इनके फॉर्मूले पे मूव ऑन कर लेता हूँ कि सर बताइए इसके फॉर्मूले को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, वन बाय वन हम लोग फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस इन्वेंट्रीज। डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला, डेप्ट अपॉन इक्विटी। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, EBIT अपॉन इंटरेस्ट। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, यस टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो दैट इज डेप्ट अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100, जब हम इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे। और जब हम इसको किस में कैलकुलेट करेंगे, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे आपका उसमें सिंपल में, तो सिंपल इज डेप्ट अपॉन टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस एवरेज इन्वेंट्री। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मींस डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल्स। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज trade payable include the creditors and bills payable. Working capital turnover ratio का मतलब revenue from operation divided by working capital equals to current assets minus current liability. उसी तरह से फिक्स एसेट्स है, करंट एसेट्स है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विच आर गिवन इन द क्वेश्चन डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स रेस्पेक्टिव। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट इनटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेशियो का फॉर्मूला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला, अभी भी जस्ट मैंने आपको बताया, EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। Capital employed can be calculated by two way. The first one is a equity share capital plus preference share capital plus reserve and surplus plus non-current liability. Whereas assets approach से formula क्या होता है, non-current assets plus current assets minus current liability. It means non-current assets plus working capital. Okay, so this is a whole summary of this chapter, so please note down in your copy properly. अब हम लोग नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं इस रेशियोज के। उसमें क्या है कि अभी तक हम लोगों ने
ये सारे रेशियोज पढ़े हैं और ये सारे रेशियोज आपके सीबीएसई सिलेबस में इंक्लूडेड है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ ऐसे रेशियोज भी हैं जो आपको बिजनेस स्टडीज में या अकाउंटेंसी में क्लास 12 में आपको हेल्प करेंगे टू डिटरमाइन द वेरियस कोर्स ऑफ डिसीजन। तो उन सारे रेशियोज को भी हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ज्यादा रेशियो नहीं, 2-3 रेशियोज हैं, उनको भी हम लोग साइड बाय साइड स्टडी करेंगे। ओके, सो प्लीज copy it in your copy and let's we move to the some other ratios which are useful for your future purpose, for your future studies also. Okay, so let's we move it. So few ratios which are also important for you, that is a return on shareholder equity, extra notes. Okay, so ये सारी चीजें भी आपको कभी ना कभी काम ही आएंगी. So that is a return on shareholder equity. What is the formula of return on shareholder equity? Please note down in your copy. That is net profit after interest and tax. Net profit after interest and tax divided by shareholder fund. And you know very well what is meaning of shareholder fund, and this ratio expressed in percentage also. Okay, so shareholder fund you know very well. Shareholder fund equals to equity share capital plus preference share capital plus reserve and surplus. Okay, now, and you know very well, all the fictitious assets will be deducted from the reserve and from the shareholder fund. Fictitious assets from shareholder fund में include नहीं करते. So this is the first extra ratio which are discussed by me. The next one is a earning per share. Earning per share. So what is the formula of earning per share? Earning per share, it will be also known as EPS. So how we will calculate the EPS of the company, EPS of the organization? The formula is net profit after tax, यानी जो प्रॉफिट पे टैक्स भी कट गया हो, इंटरेस्ट भी कट गया हो, आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पे जो हमें डिविडेंड देना है उसे माइनस करना है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, number of equity share, and this ratio will be calculated, and this ratio will be calculated on the rupees. याद रखिएगा ये रेशियो आप किसमें प्रेजेंट करते हैं, रुपीस, क्योंकि नाम इसका क्या है, दैट इज एक अर्निंग पर शेयर, यानी एक शेयर पे किस कंपनी कितना अर्न कर रही है. तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. तो जो आंसर आएगा वो 5 रुपीज, 10 रुपीज, 100 रुपीज इन सब में आएगा. सो इट विल बी नोन एज द अर्निंग पर शेयर. द नेक्स्ट वन इज price earning ratio. Next ratio is price earning ratio. Price earning ratio. It is also known as a P/E, price earning ratio. The formula of price earning ratio is market price of share, market price of share यानी शेयर का जो मार्केट प्राइस है, divided by EPS. EPS is earning per share. Okay, so this is a 3 formula. Let's we take the one more formula. The next formula is which are very important for you, that is return on equity capital. The fourth one is return on equity capital. Okay, return on equity capital, and the formula of return on equity capital is
नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल, ओनली इक्विटी शेयर होल्डर फंड, नॉट इंक्लूडेड द प्रेफरेंस शेयर होल्डर फंड। ये बात आपको याद रखना है। इट मींस इक्विटी शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या होता है? इक्विटी शेयर होल्डर फंड में प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी इंक्लूड होते हैं, बट इक्विटी शेयर होल्डर फंड में सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल ही आते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स को काउंट किया जाता है। यानी इट मींस फॉर्मूला वही है शेयर होल्डर फंड का, बट उसमें आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नाम है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी। यानी जितने भी तरह के शेयर हैं, चाहे इक्विटी शेयर होल्डर हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, सब पे हम रिटर्न काउंट कर रहे हैं यहाँ पे। बट यहाँ पर हम सिर्फ रिटर्न किस पे काउंट कर रहे हैं? इक्विटी कैपिटल पे, कि हमने जो इक्विटी में पैसा लगाया है उस पे हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। सो दिस इज अ 4 बेसिक ratios which are helps to you। हो सकता है ये रेशियोज आपको इस क्लास 12 में भी हेल्प करे, हो सकता है आपको फ्यूचर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी हेल्प करे, और हो सकता है लाइफ के किसी भी एंगल पे आपको ये हेल्प रेशियोज क्या कर सकते हैं? हेल्प कर सकते हैं। सो व्हाट इज द 4 इंपॉर्टेंट रेशियो? सर वन बाय वन एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। दैट इज अ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी, द फॉर्मूला इज नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड इनटू 100, दैट इज it will be comes in percentage। and what is the information of shareholder fund? Equity share capital, preference share capital plus reserve surplus minus fictitious assets। एंड उसके बाद अगर आप शेयर होल्डर इक्विटी के बाद इसको देखो, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। यहाँ शेयर होल्डर इक्विटी में हम रिटर्न कैलकुलेट, यहाँ हम सिर्फ इक्विटी कैपिटल पे, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सेम, उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को माइनस कर दो, उसमें से प्रेफरेंस शेयर को क्या कर दो? माइनस कर दो। ये भी परसेंटेज में कैलकुलेट होता है। तो और डिवाइड कर दो इक्विटी शेयर होल्डर फंड। यहाँ सारे शेयर होल्डर से फंड से डिवाइड हुआ, यहाँ सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर। अब ये जो पैसा है वो किसके लिए अवेलेबल होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए तो होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। ये पैसा किसके लिए अवेलेबल होता है? दिस मनी इज अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर। तो अगर उसको आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? दैट इज ईपीएस। यानी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जब प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देते हो तो ये पैसा किसके लिए अवेलेबल होता है? दिस मनी इज अवेलेबल फॉर ओनली फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। एंड इक्विटी शेयर होल्डर को अगर आप इस मनी को अगर आप इक्विटी शेयर के नंबर से डिवाइड कर दोगे तो निकल के आ जाएगा ईपीएस, दैट इज अर्निंग पर शेयर। यानी कंपनी एक शेयर पे कितना पैसा कमा रही है। एंड प्राइस अर्निंग रेशियो, दैट इज अ प्राइस अर्निंग रेशियो जो आप कैलकुलेट कर रहे हो, वो जनरली कैलकुलेट होता है टाइम्स में। दिस रेशियो इज कैलकुलेटेड इन टाइम्स, कि कंपनी कितना टाइम्स, जैसे ईपीएस आया 10 रुपए, मार्केट प्राइस है 100 रुपए, इसका मतलब कंपनी का जो मार्केट प्राइस है वो अपने एपीएस यानी प्राइस और अर्निंग में कैसा रेशियो? प्राइस मतलब शेयर का मार्केट प्राइस, और उसकी अर्निंग, नाम से क्लियर हो रहा है प्राइस अर्निंग रेशियो, मार्केट प्राइस डिवाइड बाई अर्निंग। तो मार्केट प्राइस अगर 100 है और कंपनी 10 रुपए शेयर पे अर्न कर रही है, दिस मीन्स कंपनी का जो प्राइस है वो 10 टाइम्स है। ये सारे रेशियोज को अगर आप वन बाई वन एनालाइज करोगे तो यू विल फाइंड दैट इन रेशियोज का कुछ ना कुछ इंप्लीकेशंस हैं। ये कहीं ना कहीं रेशियोज अपने नाम से ही बता देते हैं कि हमारे रेशियोज में आपको कैलकुलेट क्या करना है। ओके, सो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हो गई। लेट्स वी टेक द वन एग्जांपल फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ दीज रेशियोज। ओके, सो लेट्स वी टेक द वन एग्जांपल, क्योंकि विदाउट एग्जांपल आप इन सारे रेशियोज को कैलकुलेट करना थोड़ा पॉसिबिलिटीज नहीं है। सो लेट्स वी टेक द वन एग्जांपल for your clarification, that is from the following information, and information are 10% preference share 18 lakh, 10% preference share capital 18 lakh, equity share 10 each, equity share capital 48 lakh, and also given is information that is one share at the rate of 10 each, एक शेयर कितने का है? 10 रुपीज का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, profit after tax, it is given 18 lakh, profit after tax it is given is 18 lakh, equity market price of share, शेयर का मार्केट प्राइस है
मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस है दैट इज 40 रुपीज, यानी एक शेयर का जो मार्केट प्राइस है वो 40 रुपीज चल रहा है। आपको कई सारी चीजें कैलकुलेट करनी है, दैट इज फर्स्ट वन रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, जो चारों चीजें हमने कैलकुलेट की, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड, number third you have to calculate the EPS earning per share, and number four प्राइस अर्निंग रेशियो। जितने रेशियोज अभी हम लोगों ने एक्स्ट्रा में पढ़े हैं वो सारे रेशियोज आपको वन बाय वन कैलकुलेट करने हैं। ओके, सो लेट्स वी टेक द वन बाय वन एग्जांपल फॉर यू, सॉल्यूशन फॉर यू। So let's we take the solution one by one. First of all, we calculate the return on shareholder fund. So formula of return on shareholder fund will be, formula क्या होता है return on shareholder fund का? Formula होता है that is net profit after tax minus preference dividend divided by shareholder fund. And in this question you can see that profit after tax is 18 lakh and preference share पे dividend कितना देंगे, preference share कितने का 18 लाख, 18 लाख पे dividend कितना देंगे 10% के रेट से, तो ये हो जाएगा 1,80,000 divided by, and this will be multiplied by 100, so this ratio can be expressed in percentage. So 18 lakh divided by 1,80,000, shareholder fund में क्या आता है, preference, equity, reserve and surplus, all the things are covered. So 18 lakh preference share capital plus 48 lakh equity share capital. So that is 17 lakh 20,000 divided 16 lakh 20,000. 18 lakh में से आपका चला गया 1,80,000, that is a 16 lakh 20,000 divide plus 66 lakh into 100. So this will be comes into the percentage. Number second will be return on equity share fund. इसमें न्यूमरेटर सेम रहता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, ये वैल्यू सेम रहेगी दैट इज 16,20,000, बट इट विल बी डिवाइडेड बाय sorry preference dividend is not deducted from the when we calculate the, it will be a net profit after tax and interest, all the things. So this is not a 16,20,000, it is a 18 lakh. Okay, sorry for the mistake. So 18 lakh divided by 66 lakh. In this situation, the return on equity shareholder fund, that is net profit minus preference dividend divided by equity share capital या equity shareholder fund, और इसमें कोई रिजर्व तो दिया नहीं हुआ इस क्वेश्चन। So 16,20,000 is net profit is 18 lakh minus dividend is, ऐसे हमने अभी कैलकुलेट किया ही था। इक्विटी शेयर होल्डर फंड कितना है 48 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। नंबर थर्ड इज ईपीएस। ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, अभी जस्ट मैंने बताया, सेम रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर का सेम, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो न्यूमरेटर तो सेम रहेगा 16,20,000, ये जो आया है 16,20,000 ये कैसे आया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस किया गया है 16,20,000, एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर विल बी, यू कैन सी दैट 48 लाख रुपीज शेयर कैपिटल है और एक शेयर कितने का है 10, सो नंबर ऑफ शेयर इन दिस सिचुएशन इज 4,80,000, so it will be divided by 4,80,000, it is your EPS. And number 4 is price earning ratio. प्राइस अर्निंग रेशियो तब तक आप नहीं निकाल सकते जब तक आपको ईपीएस ना पता हो, बिकॉज यू नो वेरी वेल व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्राइस अर्निंग रेशियो। द फॉर्मूला ऑफ प्राइस अर्निंग रेशियो इज मार्केट प्राइस ऑफ शेयर
divided by EPS. So market price of share is 40 and EPS अभी आपको कैलकुलेट करना है. So one by one हम इन सारी चीजों को कैलकुलेट कर लेते हैं. So in the first situation, as you can see that 18 lakh divided by 66 lakh. So it will be a 27.27%. The first answer is 27.27%. In the second situation, return on equity capital, net profit minus preference dividend is 16 lakh 20,000. It will be divided by 48 lakh. That is 33.75. यानी कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड है, यानी टोटल फंड पे जो रिटर्न है वो है 27.27%, वेयर एज इक्विटी शेयर होल्डर पे रिटर्न कितना है 33.75. ईपीएस की बात करें तो कंपनी की ईपीएस कितनी है? कंपनी का ईपीएस है 16,20,000 डिवाइडेड बाई 4,80,000. सो ईपीएस है 3.37. यानी कंपनी को 3.38 रुपीज अप्रोक्सीमेटली कंपनी को क्या मिलता है रुपीज पर शेयर. एक शेयर पे 3.38 रुपीज का रिटर्न है. एंड अगर प्राइस अर्निंग रेशियो की बात करें तो 40 डिवाइडेड बाई 3.38, यानी प्राइस अर्निंग रेशियो, उसके प्राइस और अर्निंग के बीच का जो रिलेशन है दैट इज 40 डिवाइडेड बाई 3.38, दैट इज 11.83 टाइम्स. 11.83 times. So I want to check my answer that this is the correct answer. It will be taken as a 11.84 times approximately. So you can see that we discussed in this question the 4 extra ratios which are very important for you, that is the return on shareholder fund, return on equity shareholder fund, EPS and price earning ratio. So after discussing this types of the extra ratio, now we will completed all the ratios covered under this chapter. इस chapter में जितने ratios हमें पढ़ने थे वो सब हम लोगों ने पढ़ लिए हैं. And I hope you will solve all the practical problems given in your book as well as in the side book. Okay, so in the next video we will come to the introduce a new chapter. This is the last chapter of part B. This is the last chapter of your syllabus, that is the cash flow statement. So आज के लिए इतना ही. Thank you, thanks a lot and take care. Keep hard working and अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेट कर दो, अपने आप की प्रिपरेशन जारी रखो. ओके, बाय बाय.